Subscribe and hit the bell icon and never miss another video. If you ask me what I have been doing, I have been living with youngsters for the last 7 years. Yeah. To relearn, to rediscover myself. बहुत से स्टूडियोज एंड प्रोड्यूसर आते हैं हमारे पास रीमेक के लिए, खलनायक के लिए, कर्मा ताल बनाना चाहते हैं. हम बोलते हैं ये हमारे पास स्टॉक पड़ा है, हम ये नहीं बनाएंगे. मैंने कोशिश की थी कांची बनाने की, पर मुझको नहीं अच्छा लग रहा था. जब मैं बना भी रहा था तो भी मुझे लगता है मेरी कंपनी क्यों मुझे फोर्स कर रही है, मैं नहीं बनाना चाहता हूँ. Let's do this. When it comes to you, I get super nervous. The Zoom house actually. And You're more nervous than I am. Hello everyone, this is Akash Bhatnagar from Miss Malini, and today I am in the esteemed company of the legend himself, Mr. Subhash Ghai, who is one of the most handsome person who has ever been for decades now. So, Subhash sir, welcome to Miss Malini. Firstly, you are coming back to films after 6 years as a producer, 7 years as a producer with 36 Farmhouse. So firstly, a big congratulations to that. The teaser looks amazing. And so firstly, what made you decide that 36 Farmhouse was the film to make your return with? So first of all, my hearty thanks to you for calling me handsome. I always feel that handsome means the man who works handsome. So your first question was that how come that I have not been able to make for the last 6-7 years the movie, and after 7 years I'm coming with the 36 Farmhouse. भैया जिंदगी के बहुत पार्ट्स होते हैं. There are so many parts in life. First you struggle in movie industry, then you get an opportunity, then you establish yourself. It's a huge journey from actor to writer to director to corporate to educationist to Whistling Woods to so and so. So today I'm a senior citizen, you see, and I have done it all. I have made films for 40 years, 40 years, you see. And to your delight. And एक time आता है जब आदमी रेस्ट करना चाहता है. यार, okay, let me watch the changing world. Let me live with a youngster now. Yeah. If you ask me what I have been doing, I have been living with youngster for the last 7 years. Yeah. To relearn, to rediscover myself. Yeah. कि पूरी हिस्ट्री तो बना दी मैंने जो थी, अब उसको कैसे रिजोनोवेट किया जाए. I was never out of touch on cinema. Continuously, I was going to Whistling Woods and meeting all my students and interacting. And I've been doing something. कभी गाने लिख रहा हूँ, कभी डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, कभी मैंने एक फिल्म बनाई आधे घंटे की ऐसी. तो कभी सोशल कॉजेज के ऊपर गवर्नमेंट के लिए, भारत सरकार के लिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए गाने लिखे. बहुत से काम. मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन भी कभी फ्री था, इवन संडे. Okay. And I just don't like to be, without work. I dig my own work, I discover myself, I rediscover again, I keep working. I still work 10 hours a day, Akash ji. As my और youngsters, मेरी पूरी टीम है, ये थक जाती है अरे, लेकिन मैं नहीं थकता हूँ. जी, हम जहाँ तक रही हमारी फिल्म स्क्रीन पर नहीं आई अभी तक. फिल्में आएंगी, फिल्में क्यों नहीं आएंगी? लेकिन ये मुझे बहुत से काम और भी करने थे जो मैंने किए. आपने जैसे सर यू हैव कम फ्रॉम अ फेज ऑफ फिल्म्स, जब आपने वो ग्लोरियस फेज देखा है सिनेमा का, जब लोग मतलब लार्ज नंबर्स में रहते थे एंड सिनेमा वाज द ओनली बिग मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. अभी की जनरेशन इज काइंड ऑफ यूज्ड टू देयर बीइंग 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, टीवी, फिल्म्स एंड ओटीटी. सो उस फेज से आके यहाँ ओटीटी में आना, टू मेक अ स्विच टू ओटीटी, टू काइंड ऑफ adjust yourself in those sensibilities, तो वो प्रोसेस आपके लिए कैसी रही? देखो, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि तुमने यार सुभाष एफटीआई से एक्टिंग कोर्स किया, तो तुम डायरेक्टर कैसे बन गए, फिल्म राइटर कैसे बन गए, और तुम फिर प्रोड्यूसर और कॉर्पोरेट कैसे बन गए? तो मैं उनको एक बात समझाता हूँ कि ध्यान से देखिए, मैंने कॉलेज में बीकॉम किया, कॉमर्स. तो जितने भी कमर्शियल लॉ एंड पब्लिकेशन एंड मार्केटिंग एंड सब चीजें जो पब्लिसिटी आती थी वो सब उस कॉमर्स में पढ़ाया जाता है कि हाउ टू मार्केट एंड हाउ टू ग्रो योर कॉमर्स, राइट. उसके बाद मुझे थिएटर का शौक था, तो मैं वहाँ थिएटर करता था.
जी थिएटर में मैं एक्टिंग भी करता था, राइटिंग एंड डायरेक्शन। जी लेकिन वो 1 एक्ट प्ले या 2 एक्ट प्ले होते थे, उसमें 4 साल मैंने गोल्ड मेडल लिया। तब 2 कलाएं थी, एक कॉमर्स की भी थी मेरे पास और एक आर्ट की भी थी। जी तो मुझे पता लगा कि सिनेमा जो है कमर्शियल आर्ट है जी। अच्छा, अब ठीक है, इस आर्ट को, इस कॉमर्शियल स्पेस को समझ के चलो फिल्में बना। अगर पिक्चरें बिकती हैं तो पिक्चरें बिकती कैसे हैं वो भी सीखा मैंने। पिक्चरें बिकती हैं तो पिक्चरें चलती हैं कैसे वो भी सीखा मैंने। फिर मैंने कहा ऑडियंस कैसे होती है वो भी सीखा मैंने। फिर हॉल के अंदर फ्रंट बेंचर, लास्ट बेंचर, बालकनी क्यों होती है वो भी सीखा मैंने। खाली कहानी लिखनी और गाना लिखना नहीं सीखा जी। सो यू लर्न द आर्ट, क्राफ्ट एंड कॉमर्स ऑफ द फिल्म। बिल्कुल। उसका मीडियम भी समझते हैं। तो अगर मेरे सामने आज OTT आता है, बड़ी स्क्रीन का जमाना बदलता है और एक पैरेलल प्लेटफॉर्म मिलते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म में प्ले कैसे लिखा जाता है वो मुझे आता है जी। मुझे हमेशा नई चीज करने में इंटरेस्ट होता है जी। ऑलवेज क्यूरियस फॉर द न्यू थिंग्स। सुबह उठता हूँ तो सोचता हूँ आज नया क्या हुआ, इसको कैसे इसको करते हैं यार। दैट इज व्हाई आई एम वेरी फ्रेंडली विद द यंगस्टर्स, बिकॉज़ दे कीप टेलिंग सिनेमा हॉल जो है वो स्टार कास्ट के लिए हो गया, बुक हो गया, क्योंकि उन्होंने सबकी 100 करोड़ रुपया लेना शुरू किया और 150 करोड़ की पिक्चर बनानी शुरू की और बाकी जो होता है वो आपके सामने जी। वो गेम से मैं निकल गया। जब होगा तब करेंगे, वो तो आता ही है। जो नहीं आता है वो करना चाहिए, वो सीखना चाहिए। So, आज के टाइम का जो वर्क कल्चर है, there is a lot of difference since the 80s and the 90s that you were more active that time. So, आज का जो वर्क कल्चर है उसमें what is it one thing that you kind of, maybe one principle that you don't align with or you don't kind of understand? Is there anything like that? एक ही चीज, I am very happy multiple, you can say multiple if you want. Yes, because जो multiple करते हैं ना, the problem is they are youngsters are doing multitasking. Yeah. Multitasking beyond their capacity. Okay. हम लोगों को मल्टीटास्किंग आता था कि 10 साल पहले काम कर लिया, फिर 20 साल काम कर लिया, अब सब आता है तो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। Yeah. अब 18 साल की उम्र में आप मल्टीटास्किंग करेंगे जबकि आपने एक काम में तो निपुणता पाई नहीं। You are not absolutely perfect and efficient in one task and you're doing multitasking. So भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं रोड़ा, ना इधर रहा ना उधर रहा, ऐसा हो गया। तो इसीलिए मोस्टली बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि वेयर आई एम गुड एट, ही डज नॉट अंडरस्टैंड। तो पहले आप, मेरा ये कहना है कि पहले 10 साल 8 साल जिंदगी के एक चीज पे परफेक्शन करो, एक चीज पे, फिर दूसरी चीज पे, फिर तीसरी चीज पे, फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग करना, बिकॉज इट्स टू अर्ली। लेकिन उनको करना सब है, दे ऑल वांट शॉर्टकट। ये बात में मेरा कहता है, अदरवाइज दे आर ब्रिलियंट, they are much ahead, 20 years ahead than us, as far as in thinking, in reacting, in creating, you know. And जैसे अभी last आपकी जो production थी Hero, was it like a reboot of your old film only? So after that experiences, it did not kind of connect as much with the audience. आपने सोचा है मतलब if there's any other film of yours that you might like to remake or reboot, or you are done with that? You see, we have a huge library of blockbusters. मैंने खुद ही 19 फिल्में बनाई हैं, उसमें से 14 ब्लॉकबस्टर्स हैं। हमने 42 प्रोड्यूस किए हैं, 35 हिट्स हैं जी। तो लाइब्रेरी है और बहुत से स्टूडियोज और प्रोड्यूसर आते हैं हमारे पास रीमेक के लिए, खलनायक के लिए, परमा ताल बनाना चाहते हैं। हम बोलते हैं भाई ये हमारे पास स्टॉक पड़ा है, हम ये नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास 110 कहानियां और भी स्टॉक में है जी, जो 2024 में, 2026, 2030 तक हमारी लाइब्रेरी पूरी है। हम डेली स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, डेली न्यू एवेन्यूज को चाहते हैं। हमारी स्टोरी लैब है, हमारे यंगस्टर्स हैं, 10-12 यंगस्टर्स वो स्टोरीज पे काम करते रहते हैं। आप जब 21 साल से 22 साल 25 साल तक, तो मैं जो चीज हो गई उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता जी जी। मैं उसको वो बेच दो, पैसा मिल जाएगा, राइट दे दो, लाइसेंस दे दो, वो अपना खजाना है। एंड बिल्कुल सही बात है। एंड आपके अगर पुरानी फिल्मों की बात करें, जैसे राम लखन है, उसके तो कितनी न्यूज उठती रहती है रीमेक की बीच बीच में, लाइक
बट आप तो क्लियर है, मतलब आप क्लियर हैं कि मतलब यू डोंट वांट टू रीमेक दैट एट ऑल. वी डोंट नो. ओके. नो वे. या. क्योंकि हमारे And- पास सिर्फ स्क्रिप्ट का खजाना है हमारे पास. जी जी अच्छी अच्छी कहानी है जो अभी तक बिल्कुल टैकल भी नहीं की गई. जी बिल्कुल बिल्कुल. And around 4 years back, you had announced a film on the life of Osho as well. So उस फिल्म के ऊपर प्रोग्रेस क्या है? Whatever you can tell us. इटली के एक राइटर थे, डायरेक्टर, उन्होंने मुझे ये प्रपोजल दिया था, फ्रांस में दिया था, जी. और उन्होंने मेरे को कहानी सुनाई थी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा बोला चलो बनाते हैं, बिकॉज मैं ओशो का खुद बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और फॉलोअर भी, और मैं आई रीड हिम डेली. So I understand this Osho should be promoted and it should be a part of our children education today. तो आज का बच्चा जो सोचता है वो 90-80 में सोचते थे ओशो. तो ओशो 100 years ahead है of time, जी according to me. तो मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने उनको बोला आप मुझे स्क्रिप्ट लिख के भेजिए. तो जब उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के भेजा तो स्क्रिप्ट हमारी टीम को उतना पसंद नहीं आया कि भाई ये ओके. फिल्म जब सोचते थे ओशो के लिए, ओशो के लिए बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा, लेकिन वो प्रोजेक्शन ऑफ ओशो शुड बी वेरी स्ट्रांग एंड कंटेम्पररी लैंग्वेज में होना, आज की लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि यंगस्टर्स को वो हिट कर सके. सही बात है, बिल्कुल. And sir, lastly before leaving, I want to ask you, like, any plans of returning to direction soon for you? Why not? Returning to continue. Oh yeah, continue Why with the direction. Returning, जी, जी. coming back is bad word because I'm in a constant जी जी. listening. You are Because constantly working, yeah. डेली. तो कभी भी मेरे को बहुत लगेगा कि सुभाष भाई अभी तुमको ये फिल्म तुम्हारी बेस्ट होगी, बेटर नहीं, बेस्ट होनी चाहिए. जी अगर मुझे रूटीन में नहीं बनाना है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना दो या लोग कह रहे हैं तो बना दो, जी. क्यों? मैंने कोशिश की थी कांची बनाने की, पर मुझको नहीं अच्छा लग रहा था. जब मैं बना भी रहा था तो भी मुझे लगता मेरी कंपनी क्यों मुझे फोर्स कर रही है, मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, तो भी मुझे कह रहे हैं बनाओ. जी मैं बनाऊंगा जिस वक्त मुझे एक स्क्रिप्ट ऐसा लगेगा कि यार ये हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन फिल्म होगी. तो मैं बनाऊँ, अगर मैं आखिरी फिल्म बनानी है जिंदगी में, जी. आखिरी फिल्म बनानी है, तो मेरी जी. फिल्मों से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल. And उस स्क्रिप्ट की इंतजार है मुझे. जी जी, thank you so much for giving me this amazing conversation to hold on to forever in my life. So thank you so much, sir. Wishing you lots and lots of love and luck for 36 Farmhouse. Thank you so Yes. much. God bless you, Akash. Thank you so Wonderful. much. Thank you so much. So that was all for today, folks. Do like, share, and subscribe to Miss Malini. And do tune in next Tuesday for yet another episode of Bollywood Zoomies.